ہے لفظ پیارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی. آزادی لفظ تو سننے میں پیارا لگتا ہے، حق کی بات کرنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن حق ادا کرنا شاید ہی کسی کو آتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی پہلے سوچ میں پیدا ہوتی ہے اور پھر شعور ہمارے لیے ترقی کے راستے بناتا ہے اور پھر اس کو عملی شکل دی جاتی ہے. اگر لوگوں کی سوچ نہ بدلے اور چند لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ملک کی ترقی پر فرق نہیں پڑتا. آج کا ولاگ خود کفیل تحریک کے اوپر ہے. خود کفیل تحریک کا مطلب لوگوں کو خود کفیل بنانا ہے. جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنا ہے، جس کے بانی لیاقت صاحب اور سینئر ممبر اسد خالق ہیں، جن سے ملنے ہم منگ آزاد کشمیر گئے، جو تاریخی حوالے سے کافی مشہور ہے. منگ آزاد کشمیر کے لیے میں نے سب سے پہلے اعجاز بھائی کو بوسا گلا سے پک کیا. جہاں ایک گورنمنٹ سکول آتا ہے جس میں میجر جنرل انور خان ایکس پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر نے تعلیم حاصل کی، جو وداؤٹ چپل ٹائن سے بوسا گلا صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اس کے بعد ہم تھوراٹ بازار پہنچے، جو ایک پرانا بازار ہے جس کے ساتھ سردی، جسن پیر اور کس بازار آتا ہے. جب روڈیں نہیں تھی تو ہم پیدل بیڑی سے کس بازار جایا کرتے تھے. یہ سفر میری بچپن کی بچھڑی ہوئی یادوں کو مزید تازہ کر رہا تھا. اس کے بعد ہم منگ بازار پہنچے، جو تاریخی حوالے سے کافی مشہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم منگ یادگار گئے، جہاں کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. آؤ محبت سے سلام کر لیں انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے. السلام علیکم ایوریون، اٹس می سردار حماد، ٹریول بلاگر فرام کشمیر پاکستان. اور میں نے شروع سے ہی ٹورزم کی بات کی ہے، ایگریکلچر کی بات کی ہے. تو آج ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ منگ کے مقام پہ آئے ہیں اور یہاں پہ خود کفیل تحریک کے چیئرمین لیاقت صاحب موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حماد صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں. تحریک کا جو مقصد ہے، ہم نے تحریک اس لیے سٹارٹ کی ہے کہ کشمیر کے اندر ایگریکلچر کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کی ہے، اور کشمیر کے اندر جو ہے بہت سی بنجر زمینیں پڑی ہیں، اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی خطے کی جو ہے زمینیں بنجر ہوں، ایگریکلچر وہاں ایگریکلچر کے اوپر کام نہ ہو تو وہ خطہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ہے. ترقی کے لیے بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور وہاں سے ہر چیز پیدا کرنا ہوتا ہے.
इस हवाले से हमने छोटी सी जो हमारी जगह है यहाँ हमने हर तरह की एक्टिविटी की है और हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जैसे हमने छोटी सी ज़मीन के ऊपर एक्टिविटी की है इसी तरह हर आदमी इस तरह काम करना शुरू हो जाए कि मैं चंद आपको यहाँ पौधे बता रहा हूँ जैसे कि ये आड़ू का पौधा है ये इस साल हमने ये आड़ू का पौधा लगाया था और ये देख सकते हैं कि इसके साथ भी फल लगा हुआ है। हमारी सोना उगने वाली ज़मीनें हैं 1 साल हो गया इस पौधे को तो अच्छा 1 साल के पौधे ने ये फल देना शुरू कर जी दिया। जी तो इसी तरह आगे आप चलें कि ये है आमलूक जिसे जापानी फल कहते हैं ये भी पौधा 2 साल का है ये आपके सामने है ये भी फल दे रहा है और इसी तरह हमने इस साल ये कीवी जो है वो कीवी के पौधे लाए हैं शनकारी से मनसरे से आगे बेल्लो जड़ी लगी जी ये देखें ये वही कीवी के पौधे हैं ये देख सकते हैं कि ये इसने 1 साल अभी 6 माह हो गए इन पौधों को लगाए हुए तो ये काफ़ी बढ़ अच्छा रहे हैं। ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी ज़मीन है आपकी और ये कोई इतने जागीरदार नहीं है कोई वडेरे नहीं है कोई बहुत बड़े सरदार नहीं है बट इनके पास जो मेरे ख्याल से नॉर्मल कश्मीरी लोगों के पास होती हैं मतलब गिनी चुनी जो ज़मीनें हैं उनको इन्होंने ये यूटिलाइज़ किया है। जी देखें गंदम और मकई जो है उसके ऊपर जितनी मेहनत करते हैं जितना उसके ऊपर खर्चा होता है वो खर्चा भी कई बार नहीं पूरा होता है तो मैं चाहता हूँ और हमारी तहरीक का भी यही एक तरीकाकार है कि हम वो चीज़ें ज़मीनों के अंदर लगाएं जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसके आपके सामने ये पत्ती के पौधे हैं ये भी हमने इसी साल आके लगाए हैं ये पत्ती के पौधे देख सकते हैं और इसी तरह ये देख सकते हैं ये आगे तक और पत्ती के और ये है चेरी ये चेरी का पौधा है चेरी का जी ये भी इसी साल हमने लगाया है माशाल्लाह ज़बरदस्त तो कि ये खुबानी है ये गलगित से ये आला नस्ल की खुबानी के पौधे भी इसी साल लगाए पहले भी बैनी है ये आप ही खन्ने होने जी ये देखें मैं खुद ये अभी आके ये इस पर जिम्मेदारी करता हूँ ये अंगूर का पौधा है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अंगूर के पौधे भी लगाए हुए हैं और इसी तरह ये माल्टे का पौधा है इसी तरह आगे फिर अंगूर के पौधे हैं ये अनार के पौधे हैं और इसी माशाल्लाह और ये इसी तरह ये जो निकी ये मिर्ची ये मिर्च है हर साल हम ये मिर्ची अपने घर की इस्तेमाल करते हैं और बल्कि इर्द गिर्द लोगों को भी देते हैं और ये सब्ज़ी भी अभी 1 हफ्ता हुआ ये सब्ज़ी लगाई हुई है यहाँ कौन सी सब्ज़ी लगाई हुई है आपने ये सब्ज़ी कड़म है माशाल्लाह बादाम तो काफ़ी एक्सपेंसिव है जी ये है वो आगे बादाम का पौधा ये इस साल भी लगाया है। अच्छा ये पानी वगैरह आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो आप टैंक देख सकते हैं हमने लगाया है इरिगेशन सिस्टम लेकिन ये है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पानी खुश्क हो गया था जिसकी वजह से हमने जो है ये पानी तो इस साल तो बहुत है लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन सिस्टम को। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लहसुन की जो है पहले पौड़ी तो ही नहीं निकला ये सारा धूम है जी ये असल में अभी तैयार हो रहा है ये अभी तैयार नहीं है अभी तैयार नहीं है लेकिन ये आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि यहाँ ये एक हफ्ते तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा और माशाल्लाह इंजीर है और इसी तरह ये खेत आपने इसके साथ भर दिया है और स्ट्रॉबेरी भी है आगे स्ट्रॉबेरी भी है जी ये स्ट्रॉबेरी भी ये पकी नहीं है हाँ जी अभी पकी है खाई सकते हाँ खाएं जी गर्मी ठंडी है ऐसी स्ट्रॉबेरी फ्रेश भाई तो मस्ती बात बताऊँ मतलब इसका जो कलर है बिल्कुल सुर्ख कलर है उस तरह और जो है खाने में इतनी टेस्टी ये किन्नू है ये पौधे जो है ओए ये देखें जी ये पुदीना है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर छोटी सी गड्डी 10 रुपए की मिलती है यहाँ भरे हुए हैं ज़मीनों के अंदर और इसकी खुशबू भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार इतनी तेज़ खुशबू जी माशाल्लाह इस तरह खाई छोड़िए ना जी अगर ये अगर मैदे के लिए बड़ी मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और अगर ये चीज़ें अगर मार्केट में ले जाएं तो एक आदमी का बेहतरीन जिंदगी मुझे पूरा मिंट फ्लेवर आ रहा है मुंह में
ट्रू फेस ऑफ कश्मीर। हमारा जो देसी डेरा उसका जो बुनियादी मकसद है, उसका मकसद ही यही है कि जो कश्मीर का हकीकी चेहरा है उसको सामने लाया जाए, और जिसमें कि एक हमारा जो शोबा था वो ज़राअत का शोबा भी मौजूद था। तो आज ज़राअत के हवाले से हमने काम किया, और ये काम करते हुए हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे काफ़ी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी प्रोडक्शन की गई, जो लोगों का ख्याल यही है कि ये इन चीज़ों की काश्तकारी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। यहाँ पे भी उन चीज़ों की काश्तकारी प्रैक्टिकली करके दिखाना ये यकीनन लियाकत साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है, और ये देसी डेरा का भी तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने इनको खोज निकाला, और इनके पीछे खोजने के बाद ये एक हमारे लिए मोटिवेशन का सबब बने। और हमारा मैसेज यही है कि जिस तरह से इन्होंने ये बहुत महदूद इनकी ज़मीन है, और इस महदूद ज़मीन में इन्होंने बेहतरीन रिज़ल्ट इन्होंने निकाला इस ज़मीन से, आप लोग भी जिन लोगों के पास बंजर ज़मीनें हैं, आप लोग इनसे सबक सीखते हुए आप लोग भी अपनी ज़मीनों को आबाद करें, और आबाद करते हुए ताकि ये है कि आपका भी जो सिलसिला है वो बन सके। ना सिर्फ आप घर की हद तक इन चीज़ों में, सब्जियों में और फ्रूट की हद तक आप खुद कफील हों, बल्कि ये है कि और लोगों तक भी ये जो प्रोडक्शन है आप और लोगों तक भी पहुंचा के ज़र मुबादला कमा सकें। आज की वीडियो का मकसद ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर को प्रमोट करना था, बल्कि ना पाकिस्तान को प्रमोट करना था। मेरे ख्याल से आज हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप अफ़गानिस्तान से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे आप यूरोपियन कंट्री से हो, या फिर रशिया से हो। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया को इस एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम सब को इस तहरीक का आगाज़ करना चाहिए इन अ पॉजिटिव सेंस। इंसान मेहनत करे तो सब कुछ हो सकता है। आज़ाद कश्मीर या किसी भी जगह जो ज़मीनें बंजर हैं उनको इस्तेमाल में ला के तो बहुत से लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जब ज़मीनें इस्तेमाल में नहीं होंगे तो वो खित्ता कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। बेशक। तो खित्ते को तरक्की के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है, और नौजवान नस्ल को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि ग़ुलामी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना ज़ाती काम करना चाहिए। आप थोड़ी सी बिजनेस करेंगे उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ग़ुलामी से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ग़ुलामी एक ही जगह इंसान को रखती है। ग़ुलाम बनने के बजाय अपना काम शुरू करो। बेशक। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सरदार हमास हुज़ैई मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नई अपडेट के साथ, नई वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।